افغانستان میں طالبانی حکومت سے پاکستان اب بھارت کے خلاف بہت بڑا فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہے۔ یہ دنیا میں آتنک کی چالاک چوکڑی ہے۔ خاص کر افغانستان میں طالبان راج کے بعد بھارت کے لیے اس چالاک چوکڑی نے چنتائیں اور بھی زیادہ بڑھا دی ہیں۔ پاکستان کا افغانستان کے اندر کیا کردار ہے؟ کیا راہ کا وہاں پہ کردار آپ کے لیے کوئی پھولوں کی نرسریاں لگانا ہے؟ It is no surprise that Imran Khan and the ISI masters are now going to the Taliban with a begging bowl to take on India on their behalf. وہ کسی کالکھنڈ میں کچھ سمے کے لیے بھلے حاوی ہو جائیں لیکن اس کا استعمال کبھی استھائی نہیں ہوتا۔ وہ زیادہ دنوں تک مانوتا کو دبا کر نہیں رکھ سکتا۔ طالبان کے افغانستان میں قابض ہونے کے بعد پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی ہے۔ بھارت، امریکہ سمیت دنیا کے زیادہ تر دیشوں کو یہ اندیشہ ستانے لگا ہے کہ حالات 20 سال پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو سکتے ہیں۔ جس کابل کو جیتنے میں کوئی مہینے تو کوئی 2 مہینے کا اندازہ لگا رہا تھا، وہ بنا ایک بھی گولی چلے 24 گھنٹے میں ہی طالبان کے قبضے میں آ گیا۔ افغانستان میں طالبان کی واپسی بھارت کے لیے فی الحال کوئی بڑا خطرہ بھلے نہ دکھے، لیکن آنے والے دنوں میں یہ بڑی مصیبت کھڑی کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ چاہیں کہ ادھر انہوں نے پروجیکٹ بنائے ہیں، ادھر بہت ریکنسٹرکشن پروجیکٹ ہے، انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہے، وہ کمپلیٹ نہیں ہو چکے ہیں، انکمپلیٹ ہے، وہ کمپلیٹ کریں کیونکہ وہ عوام کے لیے ہے۔ لیکن اگر دوسری کہ افغانستان کے سرزمین کو اپنے مقاصد کے لیے، اپنے ملٹری مقاصد کے لیے، اپنی رائیولریز کے لیے استعمال کرے، وہ تو ہماری پالیسی کس کو بھی اجازت نہیں دے گی۔ بھارت نے افغانستان کے اندر مور دین $3 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، اور وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ چند ہی دنوں کے اندر جس طرح ڈوبی، اس کا اندازہ شاید مودی سرکار کو بھی نہیں تھا۔ آپ احمد مسعود کو بولیں کہ ہم تمہیں ہر مہینے $100 ملین دیں گے، 100 ملین 1 تاریخ کو تمہارے اکاؤنٹ میں ہٹ کر دیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سیاب احمد عباسی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیاب 92۔ ناظرین، امریکی فوج کے انخلاء کے بعد افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے، اور جس میں افغانستان اس وقت پوری دنیا کی توجہ کا ایک مرکز بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے خطے کے اندر اہمیت بڑھ گئی ہے۔ اسی پہ ہم بات کریں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے خطے میں کس حد تک اہمیت بڑھ گئی ہے، اور اس میں آنے والے دنوں میں پاکستان اس خطے میں کیا کردار ادا کرے گا۔ اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ پنجشیر کے اندر ابھی تک طالبان فورسز جو ہیں وہ داخل نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے، پنجشیر کی ابھی تک کیا سچویشن ہے، وہاں پہ حالات کس طرح کے ہیں، اور طالبان نے ابھی تک پنجشیر کو فتح نہیں کیا، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے رچرڈ آرمیٹیج گزشتہ دن جو انہوں نے وائس آف امریکہ کو جو انٹرویو دیا، اس کے اندر کیا انکشافات کیے۔ اور پھر ہم بات کریں گے کہ انڈین میڈیا جس طرح پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا ہے، جو ہمیشہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جب بھی پاکستان کو کسی محاذ پر کامیابی ملتی ہے تو اس کے بعد انڈین میڈیا کی توپوں کا رخ ہمیشہ سے پاکستان کی طرف ہو جاتا ہے۔ انڈین میڈیا اس وقت کیوں واویلا مچا رہا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی بیٹھے ہوئے کچھ ایسے دانشور ہیں جو اس وقت پاکستان کے افغانستان کے اندر کردار کو مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور بار جو انڈین میڈیا بولی بول رہا ہے انہی کی بولی بول رہے ہیں۔ اسی پہ ہم بات کریں گے۔ ناظرین، امریکی افواج کے انخلاء کے بعد پاکستان کی جس طرح خطے کے اندر اہمیت بڑھ گئی ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان اس خطے کو جو ہے وہ لیڈ کرے گا۔ بہت سے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے افغانستان کے اندر ڈائریکٹ سرمایہ کاری کی ہوئی تھی۔ گزشتہ 20 سالوں کے ریکارڈ کو اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے بھارت نے افغانستان کے اندر مور دین $3 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، اور وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ چند ہی دنوں کے اندر جس طرح ڈوبی، اس کا اندازہ شاید مودی سرکار کو بھی نہیں تھا کہ جو وہ انویسٹمنٹ گزشتہ اسپیشلی 2 سے 3 سالوں کے اندر جو انویسٹمنٹ وہاں پہ ہوئی تھی وہ کس طرح ڈوب گئی ہے۔ اسی لیے پاکستانی گورنمنٹ یا پاکستان کا یہی سٹانس ہے کہ جو اس ساری جنگ کے اندر جو سب سے زیادہ شکست ہوئی ہے وہ امریکہ سے زیادہ بھارت کو ہوئی ہے۔ وہ جس طرح پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیوں کو جو بھارت کنٹرول کر رہا تھا، اس کا نیٹ ورک وہاں سے ٹوٹ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے بنانے سے لے کر لائبریری کے بنانے تک، دریاؤں کے اوپر ڈیم بنانے سے لے کر بجلی کی تاریں بچھانے تک،
जिस तरह भारत ने सरमाया कारी की हुई थी, उससे भारत का आने वाले दिनों के अंदर ही प्लान था कि वो वहाँ से लेकर वहाँ पे बैठकर पाकिस्तान को कंट्रोल करेगा। ख्वाब तब चकनाचूर हो गए जब तालिबान ने चंद ही दिनों के अंदर काबुल को भी फतह कर लिया। CIA को भी ये गुमान नहीं था कि तालिबान इतने जल्दी अफ़गानिस्तान के ऊपर कंट्रोल संभाल लेंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी और जिसमें CIA ने ये इंकशाफ किया था कि 6 माह के अंदर अंदर जब अफ़गानिस्तान से अमेरिकी अफवाज का इनखला हो रहा था, तो उस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर CIA की जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी उसमें यह कहा गया था कि अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज के इनखला के बाद 6 माह के अंदर अंदर तालिबान अफ़गानिस्तान के ऊपर वापस कब्ज़ा कर लेंगे। लेकिन इस हकीकत के बारे में किसी को भी मालूम नहीं था कि तालिबान विदिन 2 वीक्स जो है वो अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे, जिसके बाद पूरी दुनिया इस वक्त हैरान है। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए रिचर्ड आर्मिटेज का ये कहना था कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो इनखला है वो दुरुस्त है और अच्छे वक्त पे हुआ है। लेकिन इसके बारे में एक और चीज़ जो उन्होंने इंकशाफ किया, जिसके अंदर ये कहा कि अभी तक हम अफ़गानिस्तान में तालिबान के आने वाले दिनों के एक्शंस को देख रहे हैं कि तालिबान किस तरह से वहाँ पे हुकूमत करेंगे। अमेरिका भी इस हद तक तैयार हो गया है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत को कबूल करने को तैयार है। इसके साथ साथ चाइना और रशिया ऑलरेडी अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत को कबूल करने को तैयार हैं। पाकिस्तान का जो स्टांस है वो इस वक्त यही है कि वो आलमी दुनिया को साथ लेकर उसके बाद ये फ़ैसला करेगी कि वो तालिबान को अफ़गानिस्तान के अंदर एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो 90s के अंदर तालिबान का जो किरदार था अफ़गानिस्तान के अंदर, उससे अभी बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है इस वक्त करंट गवर्नमेंट के अंदर। या करंट जिस तरह तालिबान ने टेक ओवर किया और उसके बाद अभी तक जिस तरह तालिबान की जो पॉलिसीज़ चल रही हैं, उसकी वजह से पूरी दुनिया भी हैरान है। तो यही वजह है कि इस वक्त दुनिया के अंदर तालिबान के बारे में जो इमेज था वो बदलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। सिर्फ एक मुल्क है जो अभी तक तालिबान के हवाले से आलमी मीडिया के अंदर या अपने नेशनल चैनल्स के ऊपर तालिबान के ख़िलाफ़ जो है वो ज़हर उगल रहा है। आपका पड़ोसी मुल्क भारत की पूरी कोशिश है कि वो इस वक्त भी पंजशीर के इलाके के अंदर अपनी फोर्सेस को भेजे और वहाँ पर पंजशीर जो है वो इनके लिए पंजशीर के इलाके के अंदर अहमद मसूद का साथ देकर वहाँ पर तालिबान को शिकस्त दें, जो नामुमकिन है। अब हम बात करते हैं कि पंजशीर को अभी तक तालिबान ने फतह क्यों नहीं किया। क्या वजह है कि तालिबान जब 34 सूबों के ऊपर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं लेकिन पंजशीर के अंदर अभी तक तालिबान दाखिल नहीं हो रहे, उसकी वजह क्या है? सबसे पहली बात यह है कि अगर पंजशीर के आप पे जियोग्राफी को या उसके टेरेन को अगर आप देखें तो वहाँ की जियोग्राफी जो पंजशीर वैली है वो आलमोस्ट माउंटेन्स के अंदर गिरी हुई है। तो जब आपके सामने ऐसे इलाके होते हैं तो इनको फतह करना मुश्किल होता है, बिल्कुल ये हकीकत है। लेकिन तालिबान की जब बात करें तो तालिबान जो तोरा बोरा के पहाड़ों के अंदर सर्वाइव करके गए, वहाँ पे सर्वाइव करके गए और फिर मुश्किल तरीन पहाड़ थे उनको भी फतह करते हुए उस तरह अमरीकी अफवाज को शिकस्त दी। गुज़श्ता दिन के अंदर ताजिकिस्तान की तरफ से कुछ हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए ताजिकिस्तान ने कुछ हेलीकॉप्टर्स भेजे थे जो पंजशीर के इलाके में लैंड हुए और वहाँ से बाकायदा कुछ लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है अहमद मसूद के जो सोल्जर्स हैं उनको दी गई। अब ताजिकिस्तान से हेलीकॉप्टर किस लिए आया ये भी एक हकीकत है। उसकी वजह यह है मोर देन 22% ताजिक अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और पंजशीर में उनकी अक्सरियत है। यही वजह है कि गुज़श्ता दिनों के अंदर ताजिकिस्तान से जो हेलीकॉप्टर आया था वो लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आया था जो अहमद मसूद और उनके फ़ौजियों को प्रोवाइड की गई। इसके अंदर इंडिया का भी डायरेक्ट हाथ है। इंडिया के एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने गुज़श्ता दिनों एक चैनल के अंदर ये बरमला कहा था कि इंडिया को तो चाहिए कि वहाँ पे अपनी फोर्सेस भेजे, अहमद मसूद के जो सोल्जर्स हैं उनको बाकायदा तनख्वाह दे। अब ये किस हद तक इंडिया खुद अफ़गानिस्तान के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, जबकि हमारे अपने मुल्क के अंदर बैठे हुए कुछ दानिश्वर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के अंदर क्या किरदार है, पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के इंटरनल मामलात के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो मेरा उनसे एक ही सवाल है कि अगर आपके पड़ोस में कोई अगर आपके पड़ोस में आके रह रहा हो, ये एक महल्ले की बात है, तो वहाँ भी पहले आप ये चीज़ चेक करते हैं कि आपके पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं उनका किरदार कैसा है, कोई मुजरम तो वहाँ के नहीं रह रहे, उनका करैक्टर किस तरह का है। तो सबसे पहले आप अपने घर को बचाने के लिए अपने पड़ोस में ऐसे लोगों को देख के रखते हैं, चाहे बेशक जगह आपकी हो या ना हो। यही सेम केस पाकिस्तान के लिए भी अप्लाई होता है कि जब आपके पड़ोस में अफ़गानिस्तान के अंदर
राह को खुली छूट मिली हुई है और राह के आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, पूरी दुनिया जो है वो इस प्रॉक्सी वार के ज़रिए एक दूसरे को शिकस्त दे रही है, तो फिर आप किस मुंह से ये कहते हैं कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अंदर क्या किरदार है? क्या राह का वहाँ पे किरदार आपके लिए कोई फूलों की नर्सरियाँ लगाना है, या वहाँ पर राह आपके लिए कोई ख़ास किस्म की मिठाई तैयार करके वो आपके लिए भेज रही है, जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अंदर क्या किरदार बनता है? पाकिस्तान, अगर आपका अफगानिस्तान आपका पड़ोसी मुल्क है, मोर देन 2200 किलोमीटर बॉर्डर आप अफगानिस्तान के साथ शेयर कर रहे हैं। अब अफगानिस्तान को इस तरह नहीं छोड़ सकते कि आपके दुश्मन को खुली आज़ादी मिली हो कि वो अफगानिस्तान में बैठकर आके आपके मुल्क के ऊपर हमला करे और यहाँ पे दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग करवाए। इसलिए हर मुल्क की कोशिश होती है कि वो जो रजीम वहाँ पे आए वो उसके प्रो रजीम हो। जैसे कि इंडिया वहाँ पे $3 बिलियन, मोर देन $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे अशरफ गनी के दौर में कर चुका है। तो क्या इंडिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहा था कि वो वहाँ पे आपके साथ अफगानिस्तान जो है वो दोस्ताना ताल्लुकात रखेगा? नहीं, बल्कि इंडिया इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहा था कि आने वाले दिनों के अंदर वो अफगानिस्तान से बैठ कर पाकिस्तान को कंट्रोल करेगा और सेंट्रल एशियन स्टेट तक उसकी एक्सेस हो जाएगी। दूसरी तरफ पंजशीर की हम बात कर रहे थे कि पंजशीर के इलाके के अंदर अगर अफगानिस्तान तालिबान जो है वो उस तरह हमला नहीं कर रहे, तो उसकी वजह यह है कि तालिबान ने इस वक्त दुनिया के अंदर एक अपना अच्छा इमेज देना है। वो नहीं चाहते कि पंजशीर के इलाके के अंदर अगर वो फतह करते हैं तो वहाँ अहमद मसूद की फ़ौज डेफिनेटली 2 से 3 हज़ार के करीब ऐसे फ़ौजी हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं, जो इस वक्त पूरी उनकी तैयारी है कि ब्लड शेड करें। और मगरबी दुनिया की जो निगाह है वो इस वक्त पंजशीर के ऊपर है। पूरी मगरबी दुनिया की जो मीडिया है वो इस वक्त अपने कैमरों समेत जो है पंजशीर के अंदर मौजूद है, और वो ये चाहते हैं कि वो ऐसा अफगानिस्तान तालिबान के बारे में एक ऐसा इमेज वहाँ से बुलंद कर सकें, ऐसा इमेज वहाँ से बिल्ड कर सकें जिसमें दुनिया को ये बता सकें कि तालिबान अभी भी 90s वाली सोच रखते हैं। अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले को बार बार जो टाइम फ्रेम दे रहे हैं उसकी वजह यह है कि तालिबान नहीं चाहते कि इस दफ़ा जो काबुल इस दफ़ा जो अफगानिस्तान फतह हो उसमें ब्लड शेड हो। तो सबसे बड़ी वजह रिचर्ड आर्मिटेज ने भी जो यही बयान दिया कि वो भी यही तालिबान को देखना चाहते हैं। अमेरिका समेत दीगर जो ममालिक हैं वो तालिबान के बिहेवियर को नोट कर रहे हैं इस वक्त। जो सबसे ज़्यादा इस वक्त यहाँ पे नुकसान होगा वो मोदी को ही होगा। गो कि मोदी का आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान का इस खित्ते के अंदर जो अहमियत बढ़ती जा रही है, इसी तनाज़र के अंदर हमने गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया के ऊपर देखा सैंक्शन पाकिस्तान का ट्रेंड चला जा रहा था, जो ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड पे था। इस ट्विटर के ऊपर जो टॉप ट्रेंड चला, इसमें ज़्यादातर जो अकाउंट्स जो यूज़ किए गए और जिन अकाउंट्स के ज़रिए जिन अकाउंट के ज़रिए सैंक्शन पाकिस्तान के ट्रेंड को टॉप पे लाया गया, ये सारे इंडिया से ऑपरेट हो रहे थे। इंडियन सोशल मीडिया विंग जो है वो इसको डायरेक्टली ऑपरेट कर रहा था। तो इससे पाकिस्तान की जो आलमी दुनिया के अंदर मकबूलियत है इस वक्त दुश्मन बौखला गया है। और ना सिर्फ गुज़श्ता अरसे के अंदर जो कश्मीर से महबूबा मुफ्ती का एक बयान था जिसमें मोदी को ये कहा गया कि वो पहले अफगानिस्तान से निकल कर कश्मीर को देखे और अपनी जो स्टेट है उसके अंदर के हालात को संभाले। साथ साथ गुलबदीन हिकमत यार ने जो मोदी को वार्न किया, इसके बाद इंडिया ये सोचने पे मजबूर हो गया कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ पंजशीर है जिसको वो इस्तेमाल करके किसी न किसी तरह अपनी जगह जो है वो अफगानिस्तान में बना सकता है। लेकिन ये सारे जो ख्वाब है वो इंडिया के चकनाचूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ आलमी दुनिया के रहनुमा जिस तरह रब्ता कर रहे हैं, तो इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर जो खित्ते में जो भारतीय उजारादारी थी, जिस तरह भारत ये चाहता था कि इस खित्ते के अंदर अपनी पावर को बढ़ा सके, वो उसका ख्वाब उसको टूटता हुआ नज़र आ रहा है। यही वजह है कि इंडियन मीडिया के ऊपर आप इंडियन मीडिया पे जाएं तो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त उनका एक ही टॉपिक जो चल रहा है वो तालिबान को लेकर चल रहा है और पाकिस्तान को लेकर चल रहा है। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फतह है कि अफगानिस्तान के अंदर प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर आ जाती है तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी फतह है। चाहे ये खबर हमारे दुश्मनों को या मुल्क के अंदर बैठे हुए दानिश्वरों को हज़म हो या ना हो, ये आने वाले दिनों के अंदर ही पता चलेगा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर क्या मार्का सर अंजाम दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।